Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. The topic of our today's lecture is shadows. Shadows. Because light travels in straight lines, if its rays are blocked, a dark area of shadow is created. क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है तो अगर लाइट की रेस ब्लॉक हो जाएं तो वो एक डार्क एरिया या शेडो जिसको हम साया कहते हैं उसको क्रिएट करती है उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में. When light falls on an object, a shadow can be seen on the surface directly behind the object. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो उसका शेडो आपको बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के पीछे वाली सरफेस पे नजर आता है. If the surface is close to the object, the shadow is the same size as or a little bigger than the object itself. अगर वो सरफेस ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज है तो जो उसका शेडो बनेगा वो या तो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम साइज पे होगा या फिर उससे थोड़ा सा बिगर होगा. इफ द सरफेस इज फर्दर अवे द शैडो अपीयर्स मच लार्जर. अगर सरफेस ऑब्जेक्ट से दूर है तो जो शेडो आपको बनता हुआ नजर आएगा वो लार्जर इन साइज होगा. At midday when the sun is overhead, shadows are short. दोपहर के टाइम में जब सन बिल्कुल टॉप पे मौजूद होता है तो जो शेडोज बन रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के वो शॉर्ट होते हैं. इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन इज लो ओवर द हॉरिजॉन शेडोज आर लॉन्ग. मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम में जब सन अर्थ के हॉरिजॉन या फिर लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है तो जो ऑब्जेक्ट के शेडोज बन रहे होते हैं वो लॉन्ग होते हैं. Now move on to questions. Question number 2. Choose the correct answer. First, sound travels through solid, liquid, air, all three. Its answer is D, all three. Second, a drum skin hit gently makes a squeak, soft sound, loud sound, hard sound. Its answer is B, soft sound. Third, the beautiful colors we sometimes see at sunrise or sunset are caused by dust, paint, droplets, dust and droplets. Its answer is D, dust and droplets. Fourth, how many minutes does it take for the sun's light to travel 146 million kilometers to reach the earth? 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes. Its answer is D, 8 minutes. Fifth, at midday when the sun is overhead, shadows are long, short, big, light. Its answer is B part, short. Question number 3. True or false? In this question, you have to tell that the given statement is true or false. First, sound waves can travel only through water and other liquids. This statement is false. Second, sound waves travel in one direction. This statement is false. Third, you can have sound without anything vibrating. Its answer is false. Fourth, very loud sounds can damage hearing. Its answer is true. Fifth, less vibration creates louder sound. Its answer is false. Sixth, light rays travel faster than sound waves. Its answer is true. Seventh, the sun, the moon, and the stars are all luminous. Its answer is true. Eighth, the brightness of light is called its intensity. Its answer is true. Ninth, the intensity of light increases as we move away from the source of light. Its answer is false. Tenth, a shadow is always smaller than the object itself. Its answer is false. Question number 4, part 2. How does light travel? Answer. Light travels in straight lines. Light हमेशा straight lines में travel करती है. Third part. Which travels faster? Light or sound?
आंसर, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट साउंड से ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करती है। फोर्थ पार्ट, आर शेडोज लॉन्गर इन द मॉर्निंग और एट मिड डे, एक्सप्लेन वाई। आंसर, shadows are longer in the morning or at midday because at that time the sun is lower over the horizon। जो ऑब्जेक्ट के शेडोज बनते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा लॉन्गर होते हैं क्योंकि उस टाइम पे सन जो है वो लोअर ओवर द हॉरिजॉन यानी कि साइड पे प्रेजेंट होता है। Fifth part, the sun is the star closest to the earth. How does this affect the intensity of its light as compared to the light or other stars? Answer, intensity of light depends upon distance between the source and object. That is why sun's light is more intense। किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होती है। तो सन एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के सबसे करीब मौजूद है, इसलिए अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो लाइट की इंटेंसिटी फॉल कर रही होती है वो सन की लाइट होती है। Sixth part, explain what is meant by transparent, translucent, and opaque materials. Give one example of each kind. Answer, transparent materials allow light to pass through them like glass. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइट को अपने अंदर से पास करने देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स allow only some light to pass through them like tissue paper। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को अपने अंदर से पास करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर। ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम लाइक वुड। ओपेक मटेरियल्स अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करने देते, फॉर एग्जाम्पल वुड। अब हम आपके बुक के पेज नंबर 7 और 8 पे फन पेज देखेंगे। ये दोनों पेज आपके होमवर्क हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन्स टू रेज ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू समथिंग ट्रांसपेरेंट। जब लाइट की रेज किसी ट्रांसपेरेंट चीज से पास करती हैं तो उससे क्या होता है। उसके बाद आपने एक टॉर्च की लाइट पास करनी है एक राउंड बॉटल फुल ऑफ मिल्क एंड वाटर से, अ स्मॉल मेडिसिन बॉटल से, एक मिरर से और अ पीस ऑफ वुड से। फिर इसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशन यानी कि आपने क्या देखा उसको रिकॉर्ड करना है। सेकेंड, कंप्लीट दिस वर्ड सर्च, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट डू दे ऑल मीन। आपने इस बॉक्स में इस पजल में इन वर्ड्स को सर्च करना है और ये सारे वर्ड्स वही हैं जो आपने चैप्टर में स्टडी किए हैं, इसलिए आपने इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। इसमें पहले आपने एक हैवी बुक लेनी है, उसको टेबल पे रखना है और फिर उसको अपनी वन फिंगर से मूव करवाना है। फिर आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे आपको कितनी एफर्ट अप्लाई करनी पड़ी, यानी कि ज़्यादा या कम। उसके बाद आपने कुछ पेंसिल्स लेनी है, उन पेंसिल्स को बुक के नीचे प्लेस करना है और फिर से उस बुक को मूव करने की कोशिश करवानी है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर। फिर आपने ये नोट करना है कि क्या आपने कोई डिफरेंस फील किया उस बुक को पहले ऐसे ही स्लिप करवाने के और पेंसिल्स के साथ स्लिप करवाने से। आपने इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट सरफेस पे भी अप्लाई करके देखना है और इसको स्लाइड इंक्लाइन जो टिल्ट सरफेस होती है उस पे भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, unjumble these words and use them to label the picture below। जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं नीचे उनको पहले आपने एक सीक्वेंस में लिखना है, फिर उसके बाद उनको यूज करना है जो नीचे दी गई पिक्चर्स हैं उनको लेबल करने के लिए और ब्लैंक में उनके नेम्स लिखने हैं कि वो क्या चीज़ है जो आपको पिक्चर में दी गई है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आपने अपनी वर्कबुक पे नोट करके उसकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है जहाँ से आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।